Let's put our hands together to welcome Dr. M.J. Khan. A very good morning to all. Honorable Minister, young dynamic minister with vision and action. Welcome. Thank you very much for being part of this program and today's inauguration by your hands. Justice Sadasivam, sir, you have been part of this program from 2018 when you were Governor of Kerala and also 2019 and 20. And that association continues. Thank you for being part of this. And foremost farmers leader of the country, Pasha Patel, Chairman of Maharashtra Agriculture Commission. Leaders representing diverse sectors of India's agriculture and food systems. Thank you for being part of this 17th Agriculture Leadership Summit. Actually, it is 19th. During COVID period, we have not counted the two done online, but otherwise it is 19th. The journey began in 2007 when myself and Professor Swaminathan, we were traveling from PIU Ludhiana to New Delhi by train. We discussed that agriculture lacks the leadership, and bringing all the leaderships at one platform, we need to conceptualize a leadership program. So that is how one small idea, and then we elaborated 4-hour journey from Ludhiana, 4.5-hour journey to Delhi. So all the details that we discussed. Next year, this became a reality, 2008, and Professor remained chair of this jury, the Bharat Ratna Professor M. Swaminathan, till 2018. In fact, that was the program in 2018 that he last time visited Delhi. And it so happened that he spoke that time, maybe this is my last visit to Delhi. It so happened that it was actually his last visit to Delhi. So a big tribute to Professor Swaminathan that he was instrumental, he was a pillar of his strength, though many more leaders and many more people who extended Dr. K.L. Chadha, Dr. Balram Jakhar were consistently with this program all the time. Thank you for sir being part of this. We know that agriculture has quite transformed in the last 17 years, especially now with the digital technologies. But the big challenge that we all face now that I'm in a global role around the world that we interact, the climate change is definitely a big issue, and agriculture is central to climate actions. That is the agenda that the world over we are concerned about, and the extremes that we witness now. So it is not a textbook story. It is actually in display that last week the temperature rising to 42 degrees in Europe and 1,000 people dying in France in one single day. So how agriculture can contribute to the reduction of carbon and the being centered to the climate change. So that is one foremost agenda that I think in subsequent sessions we discussed. But the agenda concerning Honorable Minister to your ministry is one which actually creates and can create much more wealth for the farmers. Because what farmer does in 3 months, 4 months of all risks, all investment, all hard efforts, he earns amount X. But from what he harvests and what the consumer pays, that X into 3X into 4X into 5, that is where the role of your ministry is. Now in the context of India, I think correct estimate may be anywhere, but around $650 billion is the worth of our agriculture produce, and we are second only to China, which is about 1.3 trillion or 1.4 trillion. So we are exactly half of what China, but we are almost double of what US agriculture is, which is about $300 billion, $315 billion. But US food economy is close to $3 trillion, 2.7 or something. So which means they are able to add 10 times value. And our food economy is around $850, $900 billion. So we are able to add about, let's say, 25, 30, 40% to that. So that is where the huge scope is there. Traditionally, we were in the mindset of maximizing the production. So all that we studied at agriculture universities, what about increasing the production? Because that was the time that we were deficit in food production. So that was the right strategy. But in the last 10, 15 years, commodity after commodity, we are in surplus. So now the shift has got to be from maximizing production to once saving what is produced, that is post-harvest management, Honorable Mr. Your ministry, important role playing, and adding wealth to agri-businesses, trade, branding, and all sort of things so that farmer is able to get maximum and the wealth value created gets distributed, and primary producer also is benefited primarily by this extra value that is created. So that is where more and more work is required to be done. Fortunately, that Government of India's scheme of creating
10,000 FPOs on its own, and industry and other institutions put together, almost 40,000 FPOs are there today. So whether FPOs can partner better with the ministry in creating farm level processing units, and they are very rightly empowered because they are the institutional mechanism spread across the villages of the country. So if that partnership, industry FPO partnership patronized by the EO ministry, if the farm level processing units can come up, so that basic processing not only adds the value at the farm level, but also reduction of the losses that we face and all that efforts, investment gone into that. So that is one important area. Very important dignitaries are they in this hall, and I'm sure that your message today and subsequent discussions, they can be factored into to come up with the recommendation, more clear recommendations to see that some farmers leaders are also there present in this. Kamal Singh Chauhan ji, his processing unit in 50 kilometers from here in Sonipat, wonderful work he is doing directly processing and export from there. So that model and many such models like Riders being done in Bulandshahr by Colonel Sarawat. So many such models, they can be replicated all over the country, patronized by Honorable Minister, Your Ministry. I think much more wealth can be created. So farmers district, the growth of agriculture not proportionally resulting into farmers gain, that gap can be bridged and that success stories can be taken forward. So thank you very much for all of you for being part of this. Honorable Minister has to leave this program. So therefore all of my subsequent speakers also have to keep little address short. So let me thank you once again. Thank you for being part of this. Thank you. Thank you very much indeed, Dr. Khan, for setting the context so beautifully and for those warm words of welcome. Ladies and gentlemen, for this event, we are extremely grateful and thankful to all our sponsors for extending their wholehearted support to us. And we now wish to return it back by felicitating all our distinguished sponsors and supporters. And I would request our Honorable Chief Guest, Shri Chirag Paswanji, to kindly do the honors of presenting a token of gratitude to all our sponsors. I would first like to invite our representative from IDBI Bank Limited. Thank you very much indeed. Agriculture Insurance Company of India Limited, AIC. I would request our representative to kindly come up as soon as possible. Honorable Minister Sir has another pressing commitment to attend to. Agriculture Insurance Company of India Limited. Shaktiman Teerth Agro Technology Private Limited. Representatives of Shaktiman, are they here with us? I would like to invite Krishi Rasayan Exports Private Limited. Shaktiman? Shaktiman is not here. Krishi Rasayan Exports Private Limited. Next, we would like to invite Bayer Crop Science Limited. Nobody's here from Bayer. Dhanuka Agritech Limited. Dhanuka is also not here. National Cooperative Development Corporation, NCDC. Avens India, formerly ALD Automotive, Lease Plan India. May I request all the sponsors to kindly, representatives of the sponsors to kindly rush up to come up on the stage. Indo-Gulf Crop Sciences Limited. Indo-Gulf Crop Sciences Limited. High Farm Agritech Private Limited. High Farm Agritech Private Limited, National E-Repository Limited, NERL.
After NERL, we would like to invite representatives from Union Bank of India. After Union Bank of India, we would like to invite Godrej Agrovet Limited. Not here. ITC Limited Agribusiness Division. Not here. We would like to invite Yara Fertilizers India Private Limited. Go Green Warehouses Private Limited. Indian Institute of Technology Ropar, IIT Ropar, Annamalai. Not here. No. Thank you very much indeed. Let's give a huge round of applause to all our sponsors. Ladies and gentlemen, Shri Chirag Paswan Ji is leading one of the most important ministries connected to the future of Indian agriculture, the Ministry of Food Processing Industries. Food processing is central to value addition, reducing post-harvest losses, strengthening supply chains, improving farmer incomes, and creating employment, encouraging entrepreneurship, and connecting Indian agriculture with domestic and the global markets. Under the larger vision of a modern and competitive India, the food processing sector is emerging as a bridge between the farmer, the market, the consumer, and the global food economy. Shri Paswanji's leadership is therefore deeply significant for the future of farmers, rural enterprises, agri-startups, food businesses, and India's journey towards becoming a global food processing hub. And so we are deeply honored by your presence today, and I have the privilege in requesting you to kindly deliver the inaugural address. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome the Honorable Minister. Well, good afternoon, everybody. मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे कि सीक्वेंस को तोड़कर मैं यहाँ पहले अपनी बातों को रख रहा हूँ. Actually, unlike the reputation of politicians, माना जाता है कि थोड़ा लेट होते हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि जो समय मैंने दिया हो मैं उस समय पे मैं पहुँच जाऊँ. So I was on time, but मुझे पता चला कि अभी थोड़ा सा विलम्ब और होगा. So because I have next commitment, तो मैं अपनी बातों को, और क्योंकि यहाँ पे कितनी खूबसूरत गैदरिंग मौजूद है, and rightly said that the sector, the ministry that I represent, is one of the most important ministries. आने वाले दिनों में जब हम लोग देश में कृषि को, किसानी को, एग्रीकल्चर को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्व प्रोसेसिंग सेक्टर पे आता है. प्रसंस्करण, मैं मानता हूं आने वाले दिनों में जब मेरे प्रधानमंत्री विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं 2047 तक, जब भारत को हम लोग एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर देखते हैं, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स दैट विल कंट्रीब्यूट विल बी द सेक्टर ऑफ प्रोसेसिंग. जहां एक तरफ कई ऐसे सेक्टर हैं जो नियर सैचुरेशन पे हैं, वहीं प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो अभी तक अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है. And this has been one of the concerns since the time I have taken over the ministry. My Prime Minister gave me the responsibility as the Minister of Food Processing Industries in 2024. And since then, I have realized that we have to go a long way. And I used to wonder कि अभी तक इस सेक्टर को जितना महत्व मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला. Of course, we have reasons behind that, because there was a point in time when our country was food deficit. हमारे पास अनाज की कमी थी.
एक लंबा समय हम लोगों ने प्रोडक्शन को, वॉल्यूम को क्रिएट करने में हम लोगों ने बिताया, पर आज की तारीख में जब हमारे पास वो वॉल्यूम है, उसको वैल्यू में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, इस दिशा में हम लोग को अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगाने की जरूरत है. We also have to recognize and acknowledge that looking at the length and the breadth of our country, looking at the population of over 1.4 billion people living in our country, ऐसे में ये वैल्यू चेन को स्टैब्लिश करना जितना आसान हम लोग सोचते हैं उतना आसान कतई होगा नहीं. और यहां पे जरूरत है वी एज पॉलिसी मेकर्स, यू एज इंडस्ट्री लीडर्स, एवरी स्टेक होल्डर जो प्रोसेसिंग के सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, टू कम टुगेदर, डिस्कस, डेलिब्रेट, कम आउट विद सॉल्यूशंस की कैसे हम लोग इस सेक्टर को उस हद तक आगे लेकर जा सके जहां पे हम लोग हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था बैठा सके जहां पे प्रसंस्करण से जोड़कर हर किसान अपने आप को देख सके. जब हम लोग प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि मल्टीपल चैलेंजेस को एक्नॉलेज करने वाला ये सेक्टर है. आज जब मेरे प्रधानमंत्री हमारे किसानों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने की बात करते हैं, वो एक ही माध्यम से हो सकती है, दैट इज प्रोसेसिंग. प्रसंस्करण के माध्यम से ही हम उनकी आर्थिक क्षमता को हम लोग मजबूत कर सकते हैं. आज माय हार्ट ब्रेक्स जब मैं देखता हूं कि हमारे किसानों को अपने उत्पादन को सड़क पर फेंकना पड़ता है, वो तस्वीरें हर किसी को विचलित करती हैं. पर उसके पीछे की सोच क्या है, कारण क्या है? कारण यही है कि उनके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपने उस उत्पादन को रिटेन करके रख सके. जिस दिन वो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का प्रसंस्करण कर सकेंगे, उसकी प्रोसेसिंग कर सकेंगे, उस दिन वो उसको रिटेन कर पाएंगे, ताकि मार्केट में जब उनको उचित दाम मिले या अपने हिसाब से जब वो उसको निकालना चाहे वो निकाल सकेंगे. ये व्यवस्था आज की तारीख में उन तक नहीं है, उनके पास तक नहीं है. यही कारण है कि या तो उनको औने पौने दाम पर उसको बेच देना पड़ता है, और या फिर सड़क पे उनको अपने पेरिशेबल फूड आइटम्स को, सड़क पे आलू, टमाटर, कई तस्वीरें हम लोगों ने ऐसी देखी हैं. सो एक चैलेंज, एक वर्टिकल जो इसको ये एड्रेस करता है, वो ऑब्वियसली हमारे किसानों की आर्थिक क्षमता को ये बढ़ाएगा. जब हम लोग प्रसंस्करण करेंगे, उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी आएगी, शेल्फ लाइफ अपने पेरिशेबल फूड आइटम्स की बढ़ा पाएंगे, और ना सिर्फ शेल्फ लाइफ बढ़ा पाएंगे बल्कि फिर वो उनको वो व्यवस्था देगा, मौका देगा कि उसमें और वैल्यू एडिशन करके वो अपने उस उत्पादन को बाजार में लेके जा सके, ताकि उनको बेहतर उसके दाम मिल सके. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज जहां पे हम लोग आज की तारीख में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा विषय रहा है जिसने हर सरकार को समय समय पर चिंतित करने का काम किया. ऐसे में आज जब मेरे प्रधानमंत्री इस सोच को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जहां पे हमारे देश के युवा सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ना हो, जॉब क्रिएटर्स की भूमिका में हो, जॉब गिवर्स की भूमिका में हो. अगेन प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग मैं मानता हूं इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जहां पे आपको एंटरप्रेन्योर बना के, जहां पे भले आपका उत्पादन छोटा ही क्यों ना हो, बट आपको उद्यमी बनाकर आपके नीचे लोगों को रोजगार देने की क्षमता, ये सेक्टर बनाने की क्षमता ये रखता है. I'll give you an example. Couple of weeks ago I was there in Ladakh. वहां पर मेरा परिचय एक महिला से हुआ जिन्होंने मेरे ही मंत्रालय की एक योजना PMFME, एक ऐसी योजना, और मैं मानता हूं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्कीम्स हमारी इस सरकार की ये रही है. PMFME के माध्यम से भले आपका छोटा प्रोड्यूस हो, छोटे उत्पादन हो, हमारी सरकार आपकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग इसमें प्रोवाइड करती है, जहां पे आपके प्रोड्यूस को कैसे प्रोडक्ट बनाया जा सके वैल्यू एडिशन करके, और कैसे उसकी बेहतर पैकेजिंग करके, मार्केटिंग करके, लोकल, इंटरनेशनल, डिजिटल मार्केट में कैसे आप अपने उत्पादन को लेके जा सके, ये पूरी व्यवस्था इस योजना के तहत तैयार करके दी जा सकती है. ऐसे में आई वाज इन लद्दाख couple of weeks ago and there was this one lady जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो आज से कुछ समय पहले तक वो किसी दूसरे के यूनिट में 8,000 रुपए वेतन पे वो काम करती थी, और आज की तारीख में जस्ट बाय द वर्च्यू कि उन्होंने अपने उत्पादन को, अपने प्रोड्यूस को प्रोडक्ट बनाकर वैल्यू एडिशन कर कर मार्केट में लेके जाने का उन्होंने निर्णय लिया. सी बकथॉन वाज द प्रोडक्ट दैट शी वाज, एंड जब से प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है इसकी भी काफी चर्चा हो रही है. तो सी बकथॉन
को उन्होंने अपने हिसाब से उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग उन्होंने करना शुरू किया। जो लेडी 8,000 का वेतन पा रही थी, आज उनका करोड़ों का टर्नओवर है और अपने नीचे 25 और लोगों को वो रोजगार देने की वो क्षमता रख रही हैं। ये ताकत है प्रोसेसिंग के सेक्टर की। इसीलिए जरूरी है हमें इस व्यवस्था को बढ़ाना, ताकि इन मल्टीपल चैलेंजेस को एक व्यवस्था से हम लोग एड्रेस कर सकें। किसानों का मैंने जिक्र किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज ये कैसे क्रिएट करता है उसका मैंने जिक्र किया, और साथ ही में तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज फूड वेस्टेज का। आज की तारीख में हमारे सामने ये एक विकराल रूप, ये समस्या लेती जा रही है, जहां हम लोगों ने प्रोडक्शन पे इतना ध्यान दिया कि आज की तारीख में उस प्रोडक्शन को संजो के रखना, ये हम सब के लिए धीरे धीरे चैलेंजिंग बनता जा रहा है। और परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं फूड वेस्टेज होता है, जिस तरीके से पेरिशेबल फूड आइटम्स खराब हो जाते हैं, जिस तरीके से अनाज की बर्बादी होती है। अगेन प्रोसेसिंग इज द ओनली सेक्टर जिसके माध्यम से हम लोग लंबे समय तक अपने उत्पादन को, उसकी शेल्फ लाइफ हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसकी गुणवत्ता बढ़ा के किसी दूसरे स्वरूप में उसको कंज्यूमर के सामने लेके जा सकते हैं। निरंतरता में मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। इरेडिएशन इज वन ऑफ देम। मेरे मंत्रालय ने इरेडिएशन यूनिट्स अनाउंस किए हैं, जिसके EOI अभी भी फ्लोट हो रहे हैं, जिसके माध्यम से दिस इज वन ऑफ दोस टेक्नोलॉजीज जिसके माध्यम से जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको लंबे समय तक हम लोग उसको फ्रेश रख सकते हैं। और उसके माध्यम से अगर आपको अक्रॉस द कंट्री भी उसको ट्रैवल करवाना है या उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट में बदल के उसका प्रसंस्करण करके हमें ग्लोबल मार्केट तक लेकर जाना है, वो संभव इसके माध्यम से हो सकता है। सो प्रोसेसिंग के थ्रू जहां हम लोग मल्टीपल चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, तो वहीं ग्लोबल पेनिट्रेशन भी आज की तारीख में, जब दुनिया अपने बाजारों को हमारे लिए खोल रहा है, एक के बाद एक, ना सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट्स बल्कि FTAs भी जब हम लोग देख रहे हैं, एंड इन द वर्ड्स ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, EU जैसे जहां पे एक साथ हम लोग 23 देशों के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपने बाजारों को हमारे लिए खोलना शुरू किया है, तो ये दर्शाता है कि हमारे पास विस्तार की वो संभावनाएं हैं। बट अगेन उन संभावनाओं को हम लोग 100% उसका इस्तेमाल या लाभ तभी उठा सकेंगे जब हम लोग अपनी व्यवस्था को तैयार करेंगे और अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर कर ग्लोबल पेनिट्रेशन हम लोग कर पाएंगे। इवेंचुअली मेरे प्रधानमंत्री का सपना है, और क्योंकि ये क्षमता है हम में, हम लोग ये सपना देख सकते हैं। इवेंचुअली वी वांट दैट इंडिया शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल फूड बास्केट, और ये करना कतई मुश्किल नहीं है। आज हम लोग ना सिर्फ अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करते हुए कई देशों के साथ हम लोग एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जहां पे उनको हम लोग फूड सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत आने वाले दिनों में अपने आप को ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता है। ये कतई असंभव नहीं है, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बशर्ते कि हम लोग उस ऑर्गेनाइज व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़े। मैं खुद चाहता हूं, मेरा सपना है, क्योंकि हम लोग प्रसंस्करण से सिंस द टाइम वी स्टार्टेड द सिविलाइजेशन, तब से हम लोग जुड़े रहे हैं। आज भी हमारे घर में हमारी नानी दादी, हमारे बुजुर्गों को हम लोग देखते हैं, जब शायद प्रसंस्करण शब्द भी हम लोग नहीं जानते थे, तब से हम लोग घर पे देखते थे दही जमाते हुए, अचार बनाते हुए, पापड़ बनाते हुए। ये हमारी व्यवस्था का हिस्सा हमेशा से रहा है। इसको कैसे हम लोग और ज्यादा विस्तृत करें, मैं मानता हूं ये मंच वो व्यवस्था तैयार करते हैं जहां पे इन डिस्कशंस के माध्यम से, अलग अलग सेशंस में हो रही चर्चा के माध्यम से कैसे हम लोग एक्सपैंड करें। बिकॉज मेरा भी सपना है, मैं भी चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब दुनिया का कोई भी डाइनिंग टेबल ऐसा ना हो जिस डाइनिंग टेबल पे कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ जरूर होना चाहिए। उस दिशा में
हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है एंड अगेन आई रिपीट माई सेल्फ कि हम में वो क्षमता है, हम ये कर सकते हैं। बस जरूरत है हमें अपने बैकवर्ड लिंकेजेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। जब तक हम प्रसंस्करण के यूनिट्स को फार्म के पास नहीं लेके जाएंगे, किसानों के पास नहीं लेके जाएंगे, और ऐसे में मुझे आप सबकी जरूरत है, जो इंडस्ट्री लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, जितने एफपीओस के हेड्स यहाँ पे मौजूद हैं, जितने एसएचजीस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे फार्मर्स जिन्होंने अपनी व्यवस्था को आज की तारीख में विकसित करने का काम किया है, ऐसे में हम सबको साथ में मिलकर और आपको सरकार की तरफ से जिस भी सुविधा की जरूरत है, मेरी सरकार आज की तारीख में रिफॉर्म एक्सप्रेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। दशकों से चली आ रही व्यवस्था में हम लोग बदलाव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ एडिशन टू द पॉलिसीज, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, क्या क्या करने की जरूरत है। आप जरूर अपने सुझाव इस मंच के माध्यम से औपचारिक तौर पर भी मुझ तक पहुंचाने का काम करें, ताकि जो भी बदलावों की जरूरत है प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की इस सेक्टर को एक्सपैंड करने के लिए, मेरी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों ने हर सेक्टर में ये रिफॉर्म्स लाने का काम किया। आज से 8 दशक पहले जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस वक्त की व्यवस्थाएं अलग थी, उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी। आज की परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग को क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, उसके लिए मेरी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ये विश्वास मैं इंडस्ट्री को दिलाना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ेंगे तो हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। जिन लक्ष्यों की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, वो तभी हम लोग पूरा कर पाएंगे जब वी पॉलिसी मेकर्स और आप लोग जो इसको इंप्लीमेंट करने का कार्य करते हैं, जब हम लोग हैंड इन ग्लव्स की तरह हम लोग काम करेंगे। अंत में मैं एक आग्रह मैं जरूर आप सबके साथ करूंगा, जो रह रहकर मेरे लिए, मेरी सरकार के लिए एक चिंता का विषय बनता है, विच इज कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। ये हम लोग कतई ना करें। ये विनम्र आग्रह आप सबके साथ है, और आप सब जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इसको जितना हम लोग एम्पलीफाई कर सके, इसको किया जाना चाहिए। जब हम लोग गुणवत्ता से समझौता करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मुझे पता चलता है कि मेरा कोई एक कंसाइनमेंट किसी एक इंटरनेशनल पोर्ट पे अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो गुणवत्ता के मानकों पे खरा नहीं उतर पा रहा है। ऐसे में इट इज एन एम्बैरेसमेंट नॉट ओनली फॉर माय मिनिस्ट्री, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बल्कि फॉर द नेशन एज अ होल, हम सब के लिए और आप सब के लिए भी, जो भी इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारी कोई सहयोगी कंपनी भी ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं उसका असर, उसकी परछाई हम पर भी पड़ती है। हम लोग इस बात को जरूर सुनिश्चित करने का काम करें कि भले 2 रुपए का मुनाफा हमारा कम हो, पर गुणवत्ता से हम समझौता नहीं करेंगे। दशकों लगते हैं, पीढ़ियां लगती हैं, जनरेशंस गुजर जाती हैं उस ब्रांड को बनाने के लिए, और मिनटों में वो ब्रांड का नाम खराब हो जाता है एक गलत फैसले, एक गलत समझौते से। सो क्वालिटी से हम लोग कतई कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये प्रण हम लोग जरूर यहाँ से लेकर जाएं। इवेंचुअली मैं चाहता हूं कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जहां लोगों को ये विश्वास हो कि मेड इन इंडिया है तो अच्छा होगा ही होगा। Eventually, Indian standards should be recognized as global standards। इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसमें मुझे आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत है। कई बार रेगुलेटरी बॉडीज से हम लोग की शिकायतें होती हैं कि मानक को बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रिक्ट कर देते हैं, बट वो फिल्ट्रेशन का ही प्रोसेस होता है। जितने कड़े मानक होंगे उतने वो लोग उसमें छन के निकलते जाएंगे जो संभवतः कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और साथ ही में एक विषय और जो मैं आप सबके साथ जरूर अपनी बातों को समाप्त करने से पहले साझा करना चाहूंगा। कई बार प्रसंस्करण को लेके, प्रोसेसिंग को लेके एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, और डेलिब्रेटली भी मैं मानता हूं कि एक व्यवस्था है जो इसके खिलाफ काम कर रही है। सोशल मीडिया पे मैं कई बार देखता हूं, जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू हैव अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव अ माइक इन योर हैंड, विदाउट एनी साइंटिफिक बैकिंग, विदाउट एनी
ऑथेंटिक वैलिडेटेड नॉलेज आप कुछ भी बोलने लगते हैं और लोग उसको मानने लगते हैं और धीरे धीरे इंडस्ट्री को इसका नुकसान होने लगता है। एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जाता है जहां पे प्रोसेसिंग इज इक्वलेंट टू बीइंग बैड। ये एक नैरेटिव धीरे धीरे सेट करने का प्रयास किया जाता है जिससे इस पूरे सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। मैंने भी एक हाई लेवल कमेटी जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स से लेके सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं तैयार की है कि कैसे हम लोग एक पैरेलली एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जहां पे हम लोगों को ये बताना जरूरी है कि जब हम लोग वैल्यू एडिशन की जब हम लोग प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, हम लोग गुणवत्ता को बढ़ाने की बात करते हैं, कतई उसको कम करने की बात या उसमें कोई हानिकारक पदार्थ जोड़कर कंज्यूमर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें, ये सोच कतई प्रसंस्करण से जुड़े हुए लोगों की नहीं है। मुट्ठी भर जरूर ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस व्यवस्था को बदनाम करने के लिए या खुद के लाभ के लिए इसको नेगेटिवली यूज करने का प्रयास करते हैं। उसके खिलाफ समय समय पर सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी हम लोग के द्वारा की गई है। बट इस नैरेटिव को भी फाइट करने के लिए मैं चाहूंगा आने वाले 2 दिनों में जितने भी सेशंस हों उसमें इन तमाम विषयों पर भी साइमल्टेनियसली हम लोग चर्चा करते रहें। मैं खान साहब से मैं आग्रह करूंगा कि जरूर एक बार इसकी समरी भी मुझसे साझा करें ताकि हम लोगों को एज गवर्नमेंट क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स दैट। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग डेज। जितने आपके सेशंस हों वो सारे बहुत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़े। मैं एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि दशकों से निस्वार्थ भावना के साथ हमारे देश की कृषि व्यवस्था को और उससे जुड़े तमाम पैरेलल जितने भी वर्टिकल्स हैं उसको आगे बढ़ाने का काम ये ग्रुप कर रहा है। एट द सेम टाइम जब ऐसे कॉन्क्लेव्स होते हैं एग्रीकल्चर लीडरशिप का, ये 17th कॉन्क्लेव ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया उन सब का मैं विशेष तौर पर हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं एक बार फिर से एमजे खान साहब का, चेयरमैन एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप, आपका दिल से आभार, धन्यवाद। समय समय पर आपने मुलाकात कर जो भी इंडस्ट्री की चिंताएं रही हैं, समस्याएं रही हैं, उसको भी साझा करने का आपने काम किया। यहाँ पर मौजूद फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आई एम शेयरिंग दिस टायर्स विद यू। मैं आपका भी सर धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर मौजूद चेयरमैन महाराष्ट्र एग्री प्राइस कमीशन श्री पाशा पटेल जी का, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आप दोनों से क्षमा चाहूँगा कि आपसे पहले मैंने अपनी बातों को यहाँ पे रखा, बट हाँ सून वी आर एक्सपेक्टिंग जितेंद्र सिंह साहब MOS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। सरकार के 2 मंत्रियों की उपस्थिति और आने वाले दिनों में कई और दर्शाता है कि हमारी सरकार इस क्षेत्र को लेकर कितनी गंभीर है। आपकी समस्याओं का समाधान, बॉटलनेक्स को हम लोग क्लियर कर सकें, चैलेंजेस को हम लोग सॉल्यूशन में बदल सकें, इस दिशा में निरंतरता में मेरी सरकार कार्य करने का प्रयास कर रही है। बट वी आर नथिंग विदाउट यू ऑल। सो आपके सजेशंस, आपके सुझाव निरंतरता में हमारे लिए बहुत मायने रखेंगे। मुझे ये मंच देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय जी के प्रेरणात्मक एवं दूरदर्शी उद्बोधन के लिए तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार। आपके मूल्य वचनों ने किसानों के सशक्तिकरण और भारतीय कृषि के भविष्य के निर्माण में खाद्य प्रसंस्करण के महत्व को प्रभावी रूप से स्थापित किया। Ladies and gentlemen, we would like to convey our heartfelt gratitude to Honorable Shri Chirag Paswan ji for his inspiring and visionary address. Your words have reaffirmed the importance of food processing for the farmer empowerment and the transformation of rural agriculture for building the future of Indian agriculture. I would request for a group photograph before. So can we have a group photograph, sir, before you take leave? एक group photograph. तो एक group photograph करा लो. Can we have a group photograph with the dignitaries, sir? एक group photograph, sir.
And ladies and gentlemen, let's once again put our hands together to convey our heartfelt gratitude to Shri Chirag Paswan Ji for sparing his valuable time, gracing this occasion, and for all the inspiration and insights, all those valuable insights here. And I would request everyone to kindly remain seated. We are expecting Dr. Jitendra Singh Ji any moment now. And to continue this event, thank you, sir. Thank you, sir. Pleasure meeting you always. And we would now like to invite Shri Pasha Patel Ji, Chairman of Maharashtra Agri Price Commission, to kindly address the gathering. आमंत्रित करते हैं श्री पाशा पटेल जी को आप सभी को संबोधित करने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री पाशा पटेल. नमस्कार. थोड़ी जोर से आवाज आई तो हमारा सबका ध्यान उधर जाता है और किसी ने जोर की आवाज निकाली, कुछ चले गए, कुछ जा रहे हैं और कुछ को लग रहा है कि बाहर क्या हो रहे हैं. तो बाहर कुछ नहीं हो रहा. अब शांति से आप बैठ सकते तो बैठो, बाहर कुछ नहीं है. हाँ, वेरी गुड. तो अभी आपने पासवान जी को सुना, सही तो ये उल्टा हो गया. पहले हमने बोलना चाहिए था, उसके बाद पासवान जी बोलना चाहिए था. तो आपको लगा कि मुख्य तो हो गया, अभी क्या रह गया है? तो रह गया किसान. किसान का मंत्री चला गया, अब किसान रह गया. तो अब किसान की बात जरा हमको डिस्कस करनी पड़ेगी. बात ऐसी है कि हमने इस साल आईएमडी की बात टीवी पे और पेपर पे सुनी. हम सब कृषि से जुड़े हुए लोग हैं और आपको क्या लगा पता नहीं, लेकिन मुझे क्या लगा ये मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं. आईएमडी ने ये बताया कि इस साल बादल फटने वाले, बाढ़ आने वाली है, और दूसरे लाइन में बोला कि अकाल भी आने वाला है. यानी अकाल भी है और बाढ़ भी है. ऐसा कभी सुना है क्या? अगर किसी आदमी ने कहता तो इसका पागल हो गया बोलते थे, लेकिन वो आईएमडी ने कहा. तो अभी हमने देखा कि मुझे महाराष्ट्र की मैं बात करूं आपके सामने, तो बात ऐसी है कि हमारे पास जून में सोइंग होता है, लेकिन अब जुलाई जा रहा है, अभी बारिश आ गई 1 महीना लेट. अब तक हम सुनते थे कि ट्रेन लेट है, प्लेन लेट है, बस लेट है, लेकिन अब मानसून लेट शुरू हो गया. अब कैसा बचना आप ध्यान में रखो. और जब मानसून आया तो ऐसा वैसा नहीं आया. एक दिन में 350 और 400 मिलीमीटर बारिश. यानी 12 महीने में जितनी बारिश आती है उतनी बारिश एक दिन में आके जा रही है. अब एग्रीकल्चर कैसा करेंगे? अब वो अगर उगेगा तो फिर प्रोसेसिंग होगा, जब उगेगा नहीं तो प्रोसेसिंग क्या होगा? तो हमको पहले इसकी चर्चा करना जरूरी है कि अब इसमें से रास्ता कुछ निकल सकता है क्या. मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पे अगर किसी की ज्यादा तौर पे अगर चर्चा होनी है तो चर्चा एक क्लाइमेट चेंज की होना जरूरी है कि क्लाइमेट इतना बिगड़ गया, अब इसको कंट्रोल कैसा करेंगे. हम 2015 में पेरिस में जो आईपीसीसी का सुना तो हमको आधे से ज्यादा लोगों को लगा कि आईपीसीसी हमको डरा रहा है. क्यों? तो आईपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2030 के बाद 100 दिन में आने वाली बारिश 52 आवर्स में आके जाएगी. यानी 100 दिन की बारिश 2 दिन में आके जाएगी. ऐसा बताने के बाद कुछ लोगों को लगा कि डरा रहे हैं. और हमारे देश के कुछ शास्त्रज्ञ बोले ये प्रदेश के लोगों की ये चाली होती है डराने की. अब सही हो गया.
लास्ट ईयर दुबई में 70 मिलीमीटर बारिश होने की जगह 170 मिलीमीटर बारिश एक दिन में हो गई और दुबई का नाम दुबई हो गया। और पेपर में ऐसा आता था कि 2040-50 के बाद मुंबई डूबने वाली है, लेकिन 40-50 की जरूरत नहीं, अब 4 दिन से मुंबई डूबी हुई है। आप आओ मत हमारे गांव को, मैं मुंबई वाला हूं, आप इधर ही रहो। इधर ना बादल फटेगा, ना इधर बड़े समंदर है, ना बड़ी नदी है, सुरक्षित है। अब सिर्फ गैस चेंबर है, इतना है, अब वो क्या करेंगे, उसमें तो कोई रास्ता नहीं है। तो हर जगह कुछ ना कुछ मसला है, और वो मसला छोटा नहीं है, वो मसला बहुत बड़ा है। और मुझे आप लोगों को फिर एक बार रिक्वेस्ट करनी है कि हमको गंभीरता से एक चीज पे सोचना जरूरी है। वो चीज मुझे जो बार बार अच्छी लगती है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सही लगती है इसलिए बताना चाहता हूं। और मैं आपके जैसा, आप यहां जितने भी लोग बैठे हैं ना, इस हॉल में सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूं। मैं एसएससी पास हूं, और आपकी डिग्रियां देखे ना, एमएससी, पीएचडी, लंदन, अमेरिका, और एक एक को अगर समय देंगे तो पीपीटी इतना बताएंगे कि 2-2 घंटे तक उसमें क्या है कंप्यूटर में। लेकिन मैं कंप्यूटर पे नहीं हूं, मैं जमीन पे हूं। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए, गौर से सुनिए कि अब कौन सा समय आया है। तो समय क्या है, तो मैंने जो सुना है वो बताता हूं, शायद मेरा गलत हो सकता है। सही क्या है, मैंने क्या सुना है कि 350 ppm कार्बन कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो मानव का, वनस्पति का, सबका पृथ्वी पे आराम, चैन, सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसा कार्बन बढ़ते जाएगा वैसा वैसा हमारी समस्याएं बढ़ती जाएगी। अब कार्बन कहां आके पहुंचा है, अब कार्बन आके पहुंचा है 430 ppm पे। और मैंने ऐसा सुना है 450 के बाद राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। 450 अब बहुत दिन नहीं रह गया, अब सिर्फ 20 साल रह गए हैं। और अब ये 20 साल में हमको करना क्या है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन न रहे बांस तो न बजे बांसुरी। तो हम अगर जीवित नहीं रहेंगे तो कुछ शिल्लक नहीं रहने वाला है। इसलिए अब हम सबको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। अब क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं आपको हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने जो कुछ किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन हूं, मैं चीफ मिनिस्टर एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टास्क फोर्स का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूं, मैं बांबू बोर्ड के गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं महाराष्ट्र में, और दिल्ली में भी मैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं, मैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की भी गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं, और प्राइम मिनिस्टर जी ने जो 3 कृषि कानून के लिए जो 7 लोगों की कमेटी बनाई उसमें भी मैं हूं। दिखता कैसा हूं ये छोड़ दो, पर कहां कहां हूं ये देखो, तो दिखने पे मत जाओ, बरोबर है क्या। बहुत सूट बूट वाला भी अंदर से बहुत खोखला होता है, बरोबर है क्या। तो नहीं तो बोलेंगे कि कहां कहां गया है और क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं, हम भी हैं कुछ, और हमारे जगह पे है। इसलिए मैं आपको एक विनती करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारी जो बात सुनी, उन्होंने जो डिसीजन लिए है वो डिसीजन शायद आप जिस स्टेट में रहते हो, आप जहां जिस संस्था में काम करते हो उसमें कुछ लागू हो सकते। कि देखिए हमने, महाराष्ट्र की सरकार ने क्या डिसीजन लिए है, हमने कहा कि आप देखते होंगे देश भर में जहां भी जाओ दीवारों पे लिखा हुआ है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, है करो वो करो। ये जितने लिखने के पैसे खर्चा हुए हैं देश में, उतने के अगर झाड़ लगते थे तो हमको पृथ्वी पे कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। इतने पैसे का दीवारों पे लिखा गया, लेकिन पेड़ लगाया नहीं गया, लिखा गया। लिखने से बचने वाला है नहीं, अब लगाना पड़ेगा। अब लोगों को सब, अब तुम अब सब क्या करोगे, तुम यहाँ पे जितने बैठे हैं ना वो सब मार्गदर्शन करोगे किसानों को, ऐसा करो वैसा करो। हम बोलेंगे तू, हमको क्या करने का है, तो तुमको कुछ करना नहीं है, करना उनको है। तो वो भी बोल रहे हैं मैं क्यों करूं, आ गए तो मुझे खत्म करना है।
हाँ वो बोलो, फिर हमको उनके लिए रखा गया था, वो आए तक नहीं, उनके सामने मुझे बात करना है 2 मिनट, ठीक है, ओके, अब बैठिए। हाँ, इतने पैसे खर्चा करके तुम ना टिकट दिए ना रहने की व्यवस्था की, और ऐसा नहीं चलेगा। कौन सा तो ये होगा कि हमको साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के सामने कुछ बात करनी है, ऐसे वो नहीं मिलते, अभी हम मिले हैं तो हमको सुनाना पड़ेगा, ठीक है मैडम, सही है ना? हाँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती और तुमको हिंदी नहीं आती होंगी, ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आप क्या बोल रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो तुम, ठीक है। तो मंत्री जी आए हैं, मेरी सिर्फ आपके सामने ना 2 मिनट मैं मंत्री जी को कुछ सूचना देने वाला हूं। हाँ साहब, आ गए मंत्री जी, आ गए, तो मैं यहां रुकता हूं, कंटिन्यू करूं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ साहब, थैंक यू। तो मैंने क्या क्या डिसीजन लिए मैं फटाफट मंत्री जी आए तक बताऊंगा। पहले हमने क्या किया है कि हमने किताबों में पढ़ा था कि 33% ग्रीन कवर होने के बाद हमारा वातावरण में समतोल होता है, लेकिन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया कि महाराष्ट्र में 33% ग्रीनरी अगर करना है तो 300 करोड़ वृक्ष लगाना पड़ेगा। हमने कॉरपोरेशन बनाया महाराष्ट्र में और 300 करोड़ वृक्ष लगाने का निर्णय लिया। आप सोचोगे ये सिर्फ भाषण होने वाला है, नीचे क्या होगा? नीचे ऐसा नहीं होगा। हमने 1 हेक्टेयर पौधे लगाने के लिए 7 लाख रुपए किसानों को सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। और विशेषतः हमने बांबू पे काम करना शुरू किया है। हमने बांबू में क्या काम किया है? हमने बांबू में 1 हेक्टेयर बांस लगाने के लिए 7.5 लाख रुपए तो किसानों को हम देते ही देते हैं। बांबू, महाराष्ट्र की बांबू पॉलिसी भी हमने बनाई है जिसमें 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं। और इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए एशियाई बैंक से देश में पहली बार 4,300 करोड़ रुपए हमने एशियाई बैंक से कर्जा लिया है। वो कर्जा सैंक्शन हुआ है, उस पर काम शुरू हुआ है। इस तरीके का काम हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं। आप बोलने से नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, हमारे अगली पीढ़ी अगर हमको बचाना है तो अगली पीढ़ी बचाने के लिए 2 चीजें करना जरूरी है। पहली चीज है कि 33% ग्रीन कवर बढ़ाना पड़ेगा और दूसरा फॉसल फ्यूल के बजाय बायोफ्यूल को हम प्रमोट करना पड़ेगा। और बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज मुझे जो दिखती है, तो कौन सा पेड़ लगाएंगे? बांबू लगाएंगे। बांबू क्यों लगाएंगे? तो बांबू से पूरा फॉसल फ्यूल की जरूरत हम पूरी कर सकते हैं। जैसा कि 2015 में पेरिस में कहा गया था कि कोल बेस्ड थर्मल जितने जल्दी बंद करोगे उतना हम बचेंगे। अब कोयला बंद करना, दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कैसे होता है? तो कोयले से होता है। कोयले से लाइट बनती है, कोयले से स्टील बनता है और कोयला जलाने से सीमेंट बनता है। सीमेंट, स्टील और लाइट, ये तीनों के वजह से हमारे देश में, दुनिया में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। हो गया? अरे मिनिस्टर साहब के सामने 2 लाइन बताने की है, वो क्या करेंगे बोलो? मैं बैठता हूं, वो आने के बाद फिर 2 मिनट बात करता हूं, चलेगा क्या? वैसा चलेगा। हाँ वैसा चलेगा। तो ठीक है, मैं बैठता हूं और मिनिस्टर साहब के सामने 2 बातें, फिर कहता हूं जय हिंद।